The news, huge tremors of a massive earthquake measuring 7.5 on the Richter scale, epicentered in the Hindu Kush mountain range in Afghanistan, where today felt in various states including Jammu and Kashmir, Delhi, the national capital region, Punjab, Uttarakhand and Rajasthan. People were seen rushing out of their houses and offices as the ground shook. Delhi metro services were briefly halted. Initial reports from Pakistan suggest that over 15 people have been killed in the earthquake. Prime Minister Narendra Modi has offered all possible assistance to the affected neighboring countries, and he also sought for an urgent assessment so that appropriate help could be provided to Afghanistan and Pakistan. And Sanjeet Khajuria now joins us from Jammu with an update. Well, Sanjeet, the closest area to the Hindu Kush area is Jammu and Kashmir. Give us the details. What was the impact, and what's information about any damage done? See, as far as damage is concerned, we are not getting the information because at most of the places telephone services have been badly affected. That's what we are not getting information from far off places. Yes. But we have got reports that particularly in Riyasi district, one of the old forts, Bhimgarh Fort, that has been damaged because of this earthquake. And there are also reports that at certain places there may be some damage to the electric poles also, because we are getting reports that in certain areas the power supply has also been affected. But the main problem is communication this time, that we are not getting any communication with far off places, particularly in far off district. But no loss of life has been reported so far. But I'll tell you, when this tremor was going on, people came out in large number outside of their homes. They came in open spaces. So they were definitely they were a little bit afraid of this earthquake. So at the moment, the district administration in all the in entire region, they are trying to get contact with particularly far off places so that there is no damage. Another important point is that Jammu-Srinagar National Highway, which was opened today itself after 1.5 days because of landslide, people have been advised to move very safely, because generally we have seen that after the earthquake there are instances of more landslides on the highway. So that precaution people should follow. Right, Sanjeet, and apart from the highway, any other advisories for other areas where people are living as well? This is a hilly area. Landslides could occur if the land has become loose as a result of the earthquake. See, another advisory has been issued by the district magistrate of Riyasi in Vaishno Devi area, that pilgrims, those who are visiting Vaishno Devi shrine, because they should also be little cautious, because generally after the earthquakes there are aftershocks also. So for 3-4 hours precautionary, they should take care, particularly on the hills of the Vaishno Devi shrine. Right, thanks for that information. Sanjeet Khajuria there joining us from Jammu. And let's go across now to Aditya, who is joining us from Indore. Aditya, tell us, though Indore is not so close to the epicenter of the earthquake, what kind of an impact was it there?
देखिए बिल्कुल इंदौर में जो मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं, लेकिन अगर मैं पूरे मध्य प्रदेश के लिहाज से पहले आपको बताऊं तो जो दिल्ली एनसीआर से लगा हुआ जो इलाका है, नॉर्थ से लगा हुआ जो इलाका है, वहां पर भूकंप के झटके हैं वो सबसे ज़्यादा महसूस किए गए हैं। जैसे कि ग्वालियर चंबल का जो इलाका है, नीमच, उज्जैन, इंदौर भी उसी बेल्ट में जाता है, कहीं ना कहीं मालवा बेल्ट है, यहाँ पर भी लोगों ने झटके तो महसूस किए हैं। लेकिन कुछ लोग, अधिकतर लोगों को लग रहा है कि सुन के पता चला कि हाँ कुछ भूकंप आया था। लेकिन अगर भोपाल की बात मैं आपको बताऊं तो भोपाल में भी जो दफ्तर हैं, सरकारी ऑफिसेस हैं, उनसे लोग बाहर निकल आए थे। जबलपुर जो एक ऐसा एरिया है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड, हमेशा जब भूकंप आता है सबसे पहले डर ये रहता है कि जबलपुर में इस तरह के झटके ज़्यादा महसूस होते हैं। तो लिहाजा जबलपुर में इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिली कि जब लोग घर से बाहर निकले, लोगों के अंदर एक दहशत बनी हुई थी, क्योंकि एक आफ्टर शॉक्स भी होते हैं जो मेन झटकों के बाद आते हैं, मेन शॉक्स के बाद आते हैं। तो वो आफ्टर शॉक्स के चलते भी लोग घरों से बाहर निकले। लेकिन अगर मौसम वैज्ञानिकों की बात बताऊं, जो मेरी बात हुई मध्य प्रदेश के डायरेक्टर हैं उनसे जो मेरी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि मध्य प्रदेश के जो खासकर जो चंबल का इलाका है, ग्वालियर का इलाका है, मालवा रीजन का जो एक थोड़ा बेल्ट है जो चंबल ग्वालियर से लगा हुआ होता है, निमाड़ का जो बेल्ट है, वहाँ पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं किए गए। यानी कि घबराने वाली बात नहीं है। उन्होंने भी यही सलाह दी है लोगों को, जो आप भी दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, कि घबराएं ना, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लोग चिंता ना करें। बस ये है कि इस तरह के झटके आफ्टर शॉक्स आते रहते हैं, सुरक्षित जगहों पर रहें, खुले में रहें, ज़्यादा बड़ी इमारतों में ना रहें, लिफ्ट में ना बैठें, इस तरह के राय ज़रूर दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको इंदौर की बताऊं, इंदौर में थोड़ी देर पहले लोगों से हमारी बात हुई। हालांकि थोड़ी देर पहले यहाँ पे धर्म धम्म सम्मेलन चल रहा था जिसमें श्री रविशंकर थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद उस कार्यक्रम में मौजूद थे। वहाँ भी कुछ लोगों से जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हाँ कुछ हल्के हल्के शॉक्स महसूस किए, लेकिन कुछ लोगों को वो शॉक्स महसूस नहीं हुए हैं। तो कह सकते हैं मध्य प्रदेश में भी झटके तो महसूस हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जान माल की नुकसान ऐसा कहीं से घटनाएं नहीं हुई है। लेकिन हाँ, चंबल का जो इलाका जो मैंने आपको बताया कि ग्वालियर चंबल एरिया जो है, वहाँ पर थोड़े ज़्यादा शॉक्स का असर जो है वो देखने को ज़रूर मिला है। Right. Thank you for that update, Aditya. There joining us from Indore, and let's get a quick word in from Ashutosh, who is joining us from Lucknow. Well, Ashutosh, obviously now people must have gone back to their daily activities because that's what's happened in Delhi, and I suppose the same thing must be happening in Lucknow. बिल्कुल मार्क, यहाँ पर भी जनजीवन बिल्कुल सामान्य है और लोग जो है भूकंप का जो सामान्य से झटका या तो महसूस किया या महसूस करने वाले लोगों के से सुन करके जो एहतियात बरतनी चाहिए वो एहतियात बरती। वो अपने घरे और दफ्तरों से निकल करके बाहर निकले और साथ ही इस बात का पूरी तौर पर इंतजार किया कि कहीं इस अर्थक्वेक का दोबारा रिपीटेशन ना हो, जिसकी वजह से उनको कोई जो है खतरा महसूस हो सके। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इस बात को और बल मिला कि उत्तर प्रदेश में राजधानी सहित वो तमाम सारे इलाके जो है सुरक्षित हैं। कहीं पर भूकंप के अधिक जो है इसकी तीव्रता नहीं रही है, ना ही कोई जनमाल का नुकसान रहा है। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जो एनसीआर और दिल्ली से सटे हुए थे, वहां पर लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। जबकि धीरे धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जो लखनऊ से जो पूरब का इलाका है, वहां पर लोगों ने इसकी तीव्रता को जो है बहुत ही कम लोगों ने इसको महसूस किया है। इस वक्त हमारे साथ मार्क कई लोग हैं जिनमें से हमारे ख्याल से अधिकांश लोगों ने भूकंप के झटके को महसूस नहीं किया है। केवल इक्का दुक्का लोग हैं जिन्होंने इस झटके को महसूस किया है। आपने क्या महसूस किया? मैं सेकंड फ्लोर पे चेयर पे बैठा हुआ था, तो हल्का सा बगल में मेरे साथ में मेरे मित्र बैठे हुए थे, तो मुझे लगा कि ये मेरी चेयर हिला रहे हैं। लेकिन बाद में देखा, मैंने इनसे कहा कि चेयर हिला रहे, बोले मैं तो नहीं हिला रहा हूँ। तो हल्की हल्की चेयर उठी तो मैंने कहा लगता है भूकंप आ गया, तो मैं कुर्सी से उठ करके जो है बाहर भागा। फिर आपने भी भूकंप के झटके महसूस? हम लोग ने महसूस किया, ऑफिस में काम कर रहे थे बैठ के अभी, और एकदम से चेयर हिलने लगी। तो पहले जब हिली तो कुछ महसूस सा हुआ, सेकंड टाइम जब दोबारा हिली तो फिर हम लोग उठ के नीचे भागे फ्लोर छोड़ के तुरंत। आप भी भूकंप का झटका महसूस किए? जी नहीं, मैं तो लंच कर रहा था ग्राउंड फ्लोर पे, तो टीवी पे देखा तो न्यूज़ में पता चला, वैसा कोई झटका महसूस नहीं। आपने? सर मैंने भी भूकंप का झटका कोई महसूस नहीं किया। मैं भी लंच कर रहा था इन्हीं के साथ, मगर कोई ऐसा एहसास नहीं हुआ मुझे। तो देख रहे हैं आप मार्क, की अधिकांशतः लोगों ने भूकंप के झटके को महसूस नहीं किया है। उन्हें या तो टीवी से जानकारी मिली है या भूकंप का जिन्होंने हल्का फुल्का झटका
उनके द्वारा ही Right. उनको इस बात की जानकारी मिली है। लेकिन जिस तरह से मार्क लोगों में अवेयरनेस होनी Sure. चाहिए, चेतना होनी चाहिए, वो चीज जरूर सामने देखने को मिली है कि इस आपदा के वक्त उनको करना क्या चाहिए, किस तरीके से ऑफिस, घरों और दफ्तरों से निकल करके खुले स्थान पर पहुंच Sure. करके अपनी जनहानि को रोकने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि इस प्राकृतिक आपदा को कम से कम किया जा सके। Okay. जी मार्क। Right, Ashutosh, thank you for joining us from Lucknow. So people have got back to their daily lives. He was speaking to a few people who gave us their experiences about what they felt, and the tremors were a bit light over there, not to the extent that were felt closer to the epicenter of the quake. And closer to the epicenter of the quake, in fact, Pakistan and Afghanistan have experienced some considerable damage. We are assessing, getting in information about that. And in fact, reports have suggested that more than 15 people have died so far, reports in Pakistan. And one report, unconfirmed, though it is available on some of the news sites available on the internet, saying that 12 students were killed in a school in Afghanistan.